हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम डाइसेक्ट करेंगे CET 2025 को एंड विल ट्राई टू सी द एस्पेक्ट्स दैट where the good, the bad and the ugly in this year's CET. Also this video I think is going to be more useful for people who are going to appear for CET in 2026 or further, and it will help them make a decision whether to be dependent on CET as an entrance test, whether to keep JBIMS as the only option going into the MBA season, या फिर you should have more clarity, more options in your mind. So let's start with the good aspects of CET 2025. कम थे but थे, every cloud has a silver lining, तो यहाँ पे भी वैसा ही था. कुछ good aspects I will talk about, might not really be very good but हाँ मतलब decently fine. So the first thing I'm going to talk about is fewer mistakes across slots. So अगर CET 2024 किसी ने देखा होगा, you would have seen that there were a lot of grammatical errors that were there, spelling mistakes, question में नाम किसी का पूछा हुआ है, data में नाम किसी और का दिया हुआ है. All those kind of things happened last year, but this year except for maybe 2, 3, 4 questions in each slot, there wasn't a lot of incorrect questions or grammatical errors that were present across slots. तो इस टाइम mistakes थोड़े से कम हुए. So maybe they took the feedback seriously and maybe worked on the grammatical errors वाला part. That is the feeling that I got कि भाई वहाँ पे गलती नहीं करनी है. They made a few mistakes but I think it was consciously done that they focused on not making a lot of mistakes across slots. The second thing is more or less consistent LOD. So level of difficulty wise अगर देखते हो तो सारे slots का level of difficulty mostly similar था. So 1, 3, 4, 5 इन सब slots का difficulty level mostly same था. 1 के अंदर because people were surprised by a bit, I expect the cutoffs to come down by a bit, and I have discussed the score versus percentile thing in another video. You can have a look at that video. I'll put the link to it in the description box below. Slots 2 and 6 were perceptibly slightly more difficult compared to the other slots. अब बहुत ही insanely difficult शायद मैं नहीं बोलूँगा, but slot 2 के अंदर there were some ZAT and CAT questions that were present. एक दो RCs बहुत difficult थे slot 2 के अंदर. Slot 2 के अंदर vocabulary भी बहुत difficult था. Except for that slot 2 was manageable. Slot 6 के अंदर अगर देखोगे तो RC सारे के सारे difficult आए थे. Quant काफ़ी lengthy था, and even in LR people faced some speed breakers that were there. So because of that 2 and 6 were considered to be slightly more difficult compared to the other slots that were there. But more or less you can say यार LOD काफ़ी consistent था. ऐसे नहीं हुआ that एक slot के अंदर 120 निकालना भी difficult हो रहा है और एक slot के अंदर 180 बन रहा है. So ऐसा कुछ feeling किसी को आया नहीं. So that is basically what is a good part of this year's CET. Fewer technical glitches reported. So day 2 पे काफ़ी लोगों को technical glitches face करने पड़े. अब वो because was it institute specific, center specific or was there a central issue, we don't know. But mostly वो institute specific ही होता है. अगर तुम्हारे systems मतलब updated नहीं है या फिर people there don't know how to react to these kind of situations that might happen, then there is going to be a problem. But day 2 पे काफ़ी सारे technical glitches report हुए जहाँ पे the test started 15 minutes late, 40-45 minutes late as well in some centers. काफ़ी जगह पे लोगों को 2 या 3 सिस्टम्स चेंज करने पड़े. सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ऑन डे 2. बट लास्ट ईयर जो हुआ था या फिर 2-3 साल पहले जब हुआ था जहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल गॉट 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, ये सब भी हुआ है. तो these kind of reports were not generated this year. ऐसा कुछ यहाँ पे किसी ने बोला नहीं है. बट यहाँ पे ओवरऑल अगर देखोगे तो it was mostly a glitch free test that was there. Atal mocks and response sheets I think is a new step in terms of being transparent. Atal mocks यार Atal mocks के अंदर मेरे कुछ उसके अंदर there were some positives, some negatives. I had made a separate review of Atal mocks, but Atal mocks I think was a welcome step because they at least showed you what the interface might look like, what the level of the difficulty of the questions might be, and अगर कुछ errors वगैरह आते हैं क्या ही होता है तो what exactly might happen, तो वो सारी चीज़ें पता चली अपने को. They were not the most professionally conducted mocks I would say, because काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स थे, कुछ सॉल्यूशंस गलत थे, एनालिटिक्स वेर नॉट रियली समथिंग दैट वर वेरी कैंडिडेट फ्रेंडली स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज. ये अगर 2008 में होता तो फिर आई वुड हैव बीन लाइक चलो ठीक है करके, बट 2025 में यार ये लेवल का एनालिटिक्स इज नॉट एक्सेप्टेबल. काफ़ी ज़्यादा बेटर एनालिटिक्स कर सकते थे बट ठीक है चलो, मतलब एटलीस्ट इट वॉज एन अटेम्प्ट. सो अटल मॉक्स आई थिंक वॉज अ वेलकम स्टेप. रिस्पॉन्स शीट जो लास्ट डे से शुरू किया है, एटलीस्ट दे आर शोइंग पीपल की भाई ये तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट है, इसको देख लो करके. एटलीस्ट वी नो दैट देयर आर मिस्टेक्स दैट DT और CET सेल इज मेकिंग. तो वो एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे थोड़ा सा बन जाता है. आई वुड रियली लाइक इट इफ दे वेर टू रिलीज दी
कैंडिडेट्स विद देयर स्कोर्स. आई नो सिक्योरिटी रीजंस के लिए शायद वो नहीं कर सकते, बट अदरवाइज अगर पूरा ही ट्रांसपेरेंट करना है तो यू शुड ऑल्सो टेल पीपल व्हाट इज द स्कोर दैट समवन हैज गॉट इन अ सर्टन स्लॉट. वो भी अगर मिल जाता ना तो देन इट विल बी मच मोर, पीपल विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर टेस्ट. तो दिस वे द गुड एस्पेक्ट, सम ऑफ द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ सीईटी 2025. अब देखते हैं द बैड, क्या खराब चीजें थी सीईटी के अंदर जो थोड़ी सी मतलब आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट यार दीज थिंग्स. ये तो नहीं होना चाहिए ना प्रोफेशनली कंडक्टेड टेस्ट, राइट. द फर्स्ट थिंग इज यार माइनर इनकन्वीनियंसेस इन क्वेश्चंस. तो कुछ कुछ जगह पे यार मतलब छोटी छोटी चीजें थी जो बराबर से नहीं दी थी. लाइक से फॉर एग्जांपल देयर वाज सपोज टू बी अ ग्रामेटिकल एरर इन अ सेंटेंस, बट उसमें एक वर्ड कैपिटलाइज्ड ही नहीं है, द फर्स्ट वर्ड इज नॉट कैपिटलाइज्ड. तो फिर वो सेंटेंस कैसे बना? तो मैं वो मार्क करूं या ग्रामेटिकल एरर मार्क करूं? देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट वेर इनवेरिएबली wrong or were repeated questions or they were questions that had the same options. कुछ कुछ जगह पे ये भी रिपोर्ट हुआ था जहाँ पे the question was saying something else and the options were saying something else entirely. Incorrect questions तो थे ही. So minor inconveniences in questions happened this year as well, which in a professionally run test यार तुमको 1200 questions बनाने हैं. You have the entire year to design 1200 questions. How difficult is it to make 1200 error-free questions, right? That was basically something which I didn't really feel very nice about. So that was the bad aspect of this year's CET. Interface could have been improved. Mark for review के लिए there was a checkbox that was given, तो वो normal interface जैसा नहीं था. Also question panel जो था ना that was frozen ऊपर के हाफ में. तो अगर एक लंबा क्वेश्चन आ जाता है ना तो उतना ही उसमें वो स्क्रॉल करना पड़ेगा उसको. तो इवन रेजोल्यूशन बढ़ा के भी you will not be able to see that particular question. So that way the interface was not exactly candidate friendly. Some aspects I liked about the interface. The timer was 2 hours 30 minutes and every 30 minutes it kept on reminding you that 2 hours left, 30 minutes done, 30 minutes to go and so on and so forth. So that was a good part I think. The counter was there right in front of you, कहीं पे hover नहीं करना पड़ रहा था. Even that was an aspect that I liked कि तुमको पूरा बताता कि भाई इतने questions are not visited. तो वहाँ से you could have easily figured out कि ठीक है now 1 hour is going to be up and I have not visited 120 questions. इसका मतलब I am going slower than what I was supposed to go at and because of that I need to increase my speed. So I think that interface वाला part was fine, but कुछ चीजें better कर सकते थे. As the kind of like the mark for review button and the question वाला panel that was there. ठीक है? So these were the minor inconveniences that I thought people faced this year. Operational hiccups यार कुछ कुछ चीज़ें थी. Honestly बहुत सारे centers पे I had this feedback that was shared with me that the invigilators waited for the test to begin and test शुरू होने के बाद rough sheets दिए गए. Now that is मतलब क्या करोगे तुम पहले दे दोगे rough sheets, लोग कितना ही कॉपी कर लेंगे उसके अंदर. I know some people have the habit of writing A to Z and Z to A पूरा लिख देते हैं, वहाँ पे numbers वगैरह डाल देते हैं. कुछ कुछ चीज़ें देख write and keep just for their reference, table, squares, cubes सब लिख लेते हैं, factorial सब लिख लेते हैं, होता है सब चीज़. But मतलब you can't really think that people are going to copy, because of which I will not be sharing the rough sheet at all, right? So that is something that was an operational hiccup. Another thing that I thought people at some centers faced was the invigilators being very how do I put it, they were kind of very defensive, right? जो जब भी तुम बोलते हो ना कि भाई मेरे को एक रफ शीट दो करके, वो सडनली बोलते नहीं तुमने कहाँ पे भरा है, बोलो एक ही शीट देंगे, दूसरा शीट देंगे नहीं, पूरा फिल होने के बाद ही हम देंगे. यार मतलब why exactly is there so much of resistance to give a rough sheet to people? यार मतलब इतना 1000-1200 रुपये भर के तुम टेस्ट देने बैठे हो, उसके बाद what is the hesitation in giving a rough sheet to someone who genuinely wants it? So that was something which was very sad. Across many centers I heard this feedback, but that is mostly invigilator specific. Some invigilator, for lack of a better word, behave like asses, and it is very stupid of them to not give people rough sheets, especially if they are not creating a nuisance. मतलब मैंने कुछ डूडल बनाया और हर 2 मिनट में रफ शीट मांगा, चलो ठीक है यू कैन रिफ्यूज मी, बट मैं जेन्युइनली ड्रॉ कर रहा हूँ, देयर इज अ टेबल दैट नीड्स टू बी ड्रॉन, मैं वो नहीं वो कॉर्नर पे उसको ड्रॉ कर सकता, तो क्यों मुझे रफ शीट ना मिले? So that was something that was reported across many centers. I think it will be a good strategy, या फिर at least तुम्हारा mental peace बना रहेगा if you sit for the test and before you sit for the test to clarify with the invigilators वाला team that अगर मुझे extra response sheets, sorry not response sheets but rough sheets अगर चाहिए तो आप मुझे दोगे या नहीं दोगे, and if they say हम नहीं देंगे तो carry some in your bag और बोलो कि मैं अपना लेके बैठ जाता हूँ, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो. इतनी ही गरीबी अगर फैली हुई है तो then I will take my own sheets and sit for the test. यार मतलब I don't need your sheets at all. इतना अगर तुमको रेजिस्टेंस हो रहा है तो, बिकॉज देर इज नो रूल व्हाट्सोएवर दैट प्रोहिबिट्स पीपल फ्रॉम गिविंग यू मल्टीपल रिस्पॉन्स शीट्स. दिस इज सिंपल चीपनेस ऑन देयर पार्ट दैट दे आर नॉट शेयरिंग द रिस्पॉन्स शीट्स विथ यू. वेरी 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 अनप्रोफेशनल कंडक्ट, राइट? एट मेनी प्लेसेस दिस हैपेंड.
ऑल्सो कई कई जगह पे यार इंटर मतलब द सिस्टम इटसेल्फ वाज नॉट अपडेटेड, तो जो द मॉनिटर्स दैट वर देयर दोस वेयर दे हैड लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स दैट वर देयर, वो थोड़े से फ्लिकर हो रहे थे पीछे से, माउस ठीक से नहीं चल रहा था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, चेयर्स वेयर, तो तुमको पता है व्हाट इज द स्टेट ऑफ चेयर्स इन कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री, तो ये सब चीज़ें थी, तो ऑपरेशनल हिकअप्स कुछ कुछ थे. इन सम केसेस द इन्विजिलेटर्स वेयर सुपर एक्साइटेड अबाउट द एंटायर टेस्ट कंडक्ट. तो मेरे सेंटर पे स्पेसिफिकली ये हुआ था that and this guy was a really sweet guy, मतलब nothing against the center in charge was there, but he got slightly excited in the middle of the test and he was like, yaar 18 people have not turned up in this particular lab, so I will call out these 18 names in the middle of the test, 20-30 minutes into the test I will call out the names of these 18 people and just be certain कि भाई ये लोग यहाँ पे आके बैठे नहीं हैं. देयर कुड हैव बीन बेटर वेज ऑफ डीलिंग विद दिस. यार किसी ने अगर साइन नहीं किया है और उतनी सीट्स एम्प्टी है, इट इज अज्यूम्ड दैट दीस पीपल हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट. और कौन ही इतना बेवकूफ होगा जो टेस्ट में आके बैठेगा बट वो साइन नहीं करेगा शीट के ऊपर. व्हाई विल दैट थिंग हैपन? बट यहाँ पे 18 पीपल्स नेम्स वेर कॉल्ड एकदम लाउडली पूरे के पूरे लैब के अंदर. एवरीबडी वॉज गेटिंग फिजेटी, एवरीबडी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब कि भाई ये कोई और टाइम पे कर लेते ना, पहले कर लेते एग्जाम शुरू होने के पहले तो 20 मिनट बैठ के सब टाइम पास करते हैं, उस टाइम पे कर लेते ये सब चीज. सो ऑल दीज थिंग्स वेयर देयर. दिस इज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस अक्रॉस एंट्रेंस tests. I don't think people realize the subtlety with which they should be invigilating or supervising. But यार ये बहुत funny चीज़ है in this day and age. और how can people be so insensitive to candidates needs? I'm very surprised about this. People talking on the phones and whatnot. तो ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हैं. इनको मतलब जितनी जल्दी एक SOP बना के अगर invigilators के साथ भी शेयर कर दो, I think that will be much beneficial. Otherwise ये सब फालतू चीज़ों में ही तुम्हारा टाइम पास होता रहेगा. ठीक है. रैंडम क्वेश्चन टाइप्स. इस बार कुछ स्लॉट्स के अंदर यू सॉ क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी दैट मेड नो सेंस व्हाटसोएवर. कुछ स्लॉट्स के अंदर वोकैबुलरी क्वेश्चंस वेर वेरी मैनेजेबल. एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज सार ग्रेप्स यार तुम्हारे स्लॉट में अच्छे क्वेश्चंस नहीं है तो तुमको खराब लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक इवन द बेस्ट प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स वुड नॉट हैव बीन एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द वोकैबुलरी क्वेश्चंस इन स्लॉट्स 1 and 2, बट वही लोग स्लॉट 3, 4, 5, 6 के वोकैबुलरी क्वेश्चंस शायद ठीक से सॉल्व करके आ जाते. सो कुछ रैंडम क्वेश्चन टाइप्स थे. नाउ द इक्वी परसेंटाइल normalization should take care of these deviances that are there or deviations that are there, but काफी random question types थे, right? कोई जगह पे cat के questions डाले हुए थे and एक ही question था उसके लिए. I'll come to it on the next slide, that is the ugly part, but कुछ random question types were there, ठीक है. but किसी ने अगर अटल मॉक सॉल्व किया होगा, किसी ने अगर मॉक्स दिए होंगे in general, I think you would not have been surprised on the day of the test. Having said that यार मतलब question types थोड़ा ठीक कर लो यार, ऐसा इतना variation is not good across slots, ठीक है. नेक्स्ट थिंग दी अगली में हम लोग बोलेंगे यार बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बात करने के लिए, बट द फर्स्ट थिंग इज सबसे पहले जब शुरू हुआ था यार तुमने बराबर से पूरा प्रोसेस ठीक से कंडक्ट कराया. यू मेड श्योर दैट एवरीबडी हैड इनफ टाइम एंड मोर टू रजिस्टर फॉर द टेस्ट, कंसिडरिंग दैट देयर वेर सम ऑपरेशनल इश्यूज जो हो सकते थे, मे बी बिकॉज ऑफ देयर वेर सम स्पेकुलेशंस दैट वेर देयर बिकॉज ईद वॉज देयर, मे बी उतना ऑपरेशनल वर्कफोर्स नहीं मिलता, स्टूडेंट्स माइट हैव हैड एन इशू. वो सब चीज़ को लेके मे बी दे पुश्ड इट टू अप्रैल, राइट? तो अप्रैल 1st, 2nd, 3rd को पुश किया था टेस्ट फ्रॉम व्हाट इट वाज सपोज टू बी व्हेन इट वाज सपोज टू बी कंडक्टेड. मिड मार्च में कंडक्ट करने वाले थे बट अप्रैल में क्या, चलो ठीक है, दे अनाउंस्ड इट वे अर्लियर दैट अप्रैल में होने वाला है, फाइन. बट यार एडमिट कार्ड्स तुम जल्दी रिलीज क्यों नहीं करते? मतलब व्हाई रिलीज द एडमिट कार्ड्स 5 or 6 days बिफोर द टेस्ट? यार इतना लेट नहीं रिलीज करना चाहिए. आई होप पीपल हैव नॉट सफर्ड एक्सीडेंट्स एंड हैव नॉट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. यार मतलब फिर जिम्मेदार कौन है? You make someone travel to a center which is far away and they are not able to obtain even a train reservation. वो बेचारे कुछ जनरल कंपार्टमेंट में कहीं पे जाते हैं and God forbid something bad happens to them. Who is responsible for this particular part? तो मतलब तुम्हारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर करने के लिए यू आर वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट कि भाई सब जगह पे सब कुछ ठीक है कि नहीं. बट इट इज अ नाइटमेयर फॉर पीपल हु हैव टू ट्रैवल टू अदर सिटीज, स्पेशली फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स, जो OMS स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज एक ही सिटी होता है जहाँ पे तुम्हारा सेंटर हो सकता है. एंड इफ यू डोंट गेट दैट सिटी यू बेसिकली हैव टू ट्रैवल टू अनदर सेंटर. एंड ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सेंटर्स मिलते हैं. यू विल गेट सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सम रैंडम वेरिएबल दैट विल बी दैट, ठीक है. तो रैंडमली सेंटर्स allocate होते हैं. तो even if you are the last person to fill the CET form, there is a good chance you might get a decent center nearby.
तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ा. आई डोंट माइंड ट्रैवलिंग, सी आई एम ओके विथ ट्रैवलिंग, बट द पॉइंट इज that you should facilitate a travel and you should come out with the schedule maybe 2 or 3 weeks before the test happens. 2 week पहले तो कर लो, लोगों को कुछ तो अरेंजमेंट करने के लिए टाइम मिले. So that was a big circus that happened towards the end. A lot of people might not have turned up for the test purely because they had to travel and pay 10,000 odd rupees to go from one place to the other. It was a horrible thing to happen this year. The other thing, questions copied from CAT or ZAT papers. या तुम कॉपी कर लो, चलो आई एम नॉट अगेंस्ट कॉपिंग एट ऑल, यू कैन गेट इंस्पायर्ड. आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जिसके अंदर तुम वेरिएशन बना के बना सकते हो क्वेश्चंस. ठीक, आई डोंट से दैट 1200 क्वेश्चन बनाना इंपॉसिबल है. इजीली यू कैन मेक 1200 क्वेश्चंस. इनफैक्ट दोस ऑफ यू वुड हैव अपीयर्ड फॉर मॉक्स, तो टेस्ट फंडा के मॉक्स अगर दिए हैं 30 मॉक्स इंटू 200 क्वेश्चंस पर मॉक, 6000 क्वेश्चंस वेर देयर एंड आई डोंट थिंक देयर वर एनी क्वेश्चंस दैट वर रिपीटेड, पूरा का पूरा वर्बटिम रिपीट करके डाल दिया है. ठीक है, बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे 6000 क्वेश्चंस के अंदर. Any of the popular mock test providers you look at, if they are providing 10 or 20 mocks, यार 2000 4000 questions वो लोग बना रहे हैं without repeating questions. And suddenly there is this CET cell which cannot create 1200 unique questions. वो लोगों को क्या करना पड़ रहा है, पुराने कैट और जैट के पेपर्स में से क्वेश्चंस लेने पड़ रहे हैं. I think somewhere there has to be some accountability with the agency through where these people are sourcing these questions. यार वो agency नहीं ठीक से काम कर रहा, to be very honest. And even this year we saw first slot के अंदर there was reportedly a ZAT का passage. Second slot में I know for a matter of fact that there was one CAT का LR set, the idli vada set that was there. एक aeroplane का वो set है, I don't know set से क्या प्यार है इन लोगों को. Last year भी उसमें से कुछ questions रहे थे, इस साल एक question आया था from that set. Now that set is a nightmarish set and शायद मैं भी वो सॉल्व ना करूं, राइट. इट वाज दैट डिफिकल्ट अ सेट, मतलब मैं वीडियो पे भी शायद सॉल्व ना करूं, इतना डिफिकल्ट वो सेट है. उसको तुम डाल रहे हो सीईटी के अंदर, उसमें से भी एक ही क्वेश्चन डाल रहे हो. दैट वाज लाइक एब्सोल्युटली, मतलब दिस वाज डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी सैड कि भाई मतलब तुम कॉपी कैसे कर सकते हो यार कैट पेपर से. नाम तो चेंज कर लो, कुछ तो चेंज करो लाइफ के अंदर, मतलब अर्न द मनी दैट यू आर बीइंग गिवन यार. मतलब हाउ इज दैट प्रोफेशनल, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो सच अ लार्ज स्केल 2 लाख लोग बैठ रहे हैं, 1200 रुपीज़ एवरेज टिकट साइज, चलो 700-800 का पकड़ लो. व्हाट इज द काइंड ऑफ मनी दैट दे आर मेकिंग. एंड उसके बाद मतलब इफ यू आर कॉपिंग क्वेश्चन फ्रॉम कैट और ज़ैट, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग स्पेशली इज व्हाट आई फेल्ट. ठीक है, लैक सिक्योरिटी वॉज रिपोर्टेड एट सम सेंटर्स. अब अगेन ऑनेस्टली आई डोंट हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस. दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल हैव रिपोर्टेड अक्रॉस टेलीग्राम चैनल्स और ऑन यूट्यूब मैसेजेस एंड कमेंट्स एंड ऑल, योर यूट्यूब कमेंट्स बेसिकली. बट कुछ कुछ जगह पे मतलब पीपल वेर अलाउड टू टेक देयर फोन्स एंड गो टू द सेंटर. नाउ द आइडिया इज फॉर यू टू रिपोर्ट. अगर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस दिखे हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट एंड देन होप कि उसका कुछ हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ हो जाए. बट कुछ कुछ जगह पे मतलब लैक सिक्योरिटी वॉज रिपोर्टेड एंड अगेन इफ दिस इज ट्रू देन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. Especially considering that there were vocabulary questions that could have easily been searched and could have easily been copied. I know there is a certain SOP that exists for malpractices, but यार यू कांट हैव सिक्योरिटी लैप्सेस एट सेंटर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज डार्क क्लाउड ऑफ माल प्रैक्टिसेस. मतलब एग्जाम के कुछ हफ्ते पहले देयर सडनली इज अ न्यूज सेइंग दैट मुंबई पुलिस, आई बिलीव, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड एंड दे अरेस्टेड सम पीपल बिकॉज दे वेर मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस कि तुमको हम जेबी के अंदर एडमिशन दिलवा देंगे फॉर वट एवर 9 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी नंबर है, उतने पैसे के लिए हम तुमको डायरेक्ट एडमिशन दिलवा देंगे. एंड दैट वाज समथिंग यार, मतलब सी आए दिन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट दिस मैसेज. मेरे को भी बहुत मैसेजेस आते हैं. आई जनरली मार्क देम एज स्पैम एंड फॉरगेट अबाउट देम, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ समवन इज गलेबल इनफ यार वो वहाँ पे रिवर्ट करेगा उस मैसेजेस को, उन मैसेजेस को, एंड देन दे माइट एंड अप इन बिग ट्रबल. आई डोंट नो लोगों में हिम्मत कहाँ से आती है कि भाई सब स्कैम छोड़ो, हम लोग यहाँ पे घुस के JBIMS के अंदर एडमिशन का स्कैम हम करके दिखाएंगे. सो आई डोंट नो, देयर इज अ डार्क क्लाउड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा. मतलब इफ यू लुक एट सोशल मीडिया फोरम्स, आई जनरली डोंट वांट टू गेट इनटू हु सेड व्हाट एंड हाउ गुड और बैड दिस फोरम्स आर, बट इवन इफ यू जस्ट गो टू अ रेडिट और एनी ऑफ द यूट्यूब कमेंट्स दैट आर देयर, you will come across someone or the other saying something or the other about this test. यार कैट के बारे में ना मैल प्रैक्टिसेस के बाद ज़्यादा लोग नहीं करते. You look at कैट का कंडक्ट, people will not like the normalization process, हो सकता है. People will not like the difficult questions that they come across, हो सकता है. But nobody will complain about malpractices, right? And CAT is conducted at a much higher, मतलब you can say much higher level so to say, right? तो काफ़ी ज़्यादा
मतलब एक्सटेंसिव होता है कैट का कंडक्ट, तो वहाँ पे अगर नहीं हो रहा मैल प्रैक्टिस सीईटी के अंदर ही क्यों हो रहे हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट इज देयर, ठीक है. अश्योर्ड एडमिशन स्कैम्स, अगेन गोइंग फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस, अश्योर्ड एडमिशन स्कैम्स, अगेन ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट एक चीज़ तो मैंने हमेशा से बिलीव किया है दैट देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर. कहीं पे कुछ तो इनके हाथ लगा होगा तभी जाके अरेस्ट हुए, तभी जाके मतलब ये चीज़ें हुई है. वाई आर पीपल फीलिंग सो एम्पावर्ड टू मैसेज पीपल ब्लेटेंटली, यार ये सब मतलब हश हश टोन्स में डिस्कस होना चाहिए, राइट. यू आर अ पार्ट ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब, एन एक्सक्लूसिव ग्रुप, वहाँ पे तुमको ये सब चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है. यार डार्क वेब पे कहीं पे तो तुमको पता चल रहा है बेसिकली, वहाँ से तुम्हारे पास ये चीज़ें आ रही है. यार एसएमएस भेज के कोई तुमको नहीं बोलेगा ना कि जेबी में एडमिशन लो करके, मतलब इतना ब्लेटेंटली अगर चीज़ें, मतलब इतनी ब्लेटेंटली अगर चीज़ें चल रही हैं, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे देर इज दिस डिग्रेडेशन ऑफ द ब्रांड नेम दैट एग्जिस्ट्स. सो दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट क्वाइट लाइक. अब ओवरऑल वर्डिक्ट अगर देना है हाउ गुड और बैड वाज द सीईटी, आई वुड से दैट मे बी आई विल गिव इट 3 stars आउट ऑफ 5. 4 या 5 देने की बात ही नहीं बनती, बट 3 चलो ठीक है. दिस टाइम द कंडक्ट वाज स्लाइटली बेटर. एक लाइन में अगर मेरे को वर्डिक्ट बताना है, इट वेंट फ्रॉम टोटल केओस टू माइल्ड कंफ्यूजन, ठीक है. सो ऐसा नहीं था कि इट वाज वेरी गुड, बट टोटल केओस जो लास्ट ईयर हुआ था उतना खराब नहीं था. इट वाज माइल्ड कंफ्यूजन. देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई थिंक दिस वाज अ वेलकम स्टेप दिस ईयर, ठीक है. अभी क्या करना चाहिए, इस सीईटी रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, ये सब तो तुमने सुन लिया. अब क्या होता है सीईटी के अंदर, रिकमेंडेशन क्या होगा मेरा. सी लास्ट टेस्ट है, लास्ट ऑप्शन है. आई वुड नॉट वॉन्ट दिस टेस्ट टू बी दी वन जहां पे मेरे सारे के सारे एस्पिरेशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है. सो प्लीज डोंट मेक दिस और डोंट गेट इन टू दिस सिचुएशन जहां पे यार ये ही है इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. लोग 6 महीने 8 महीने 10 महीने से प्रिपेयर करते हैं सीईटी के लिए. वन सीईटी डज नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ प्रिपरेशन, एंड आई थिंक यू आर बेटर ऑफ टेकिंग एन एनमैट, अ स्नैप, मे बी अ माईकैट इन एडिशन टू टेकिंग सीईटी. मैंने बोला कि सीईटी मत दो, बट यार माईकैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, ये सारे टेस्ट भी दे दो इन एडिशन टू सीईटी, जस्ट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन. आई एम नॉट सेइंग कैट और ज़ैट दे दो, मे बी योर स्किल सेट डज नॉट help you crack the CAT or the ZAT. I would still suggest to take the CAT and the ZAT, but अगर नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट 4-5 टेस्ट दे दो. सिर्फ सीईटी पे डिपेंडेंट मत रहो. यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन एंड इट्स अ मैटर ऑफ अ डे. उस दिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो टेल मी दैट दे आर इंटरेस्टेड इन सीईटी बिकॉज वहाँ पे फीस कम है. यार फीस कम है इसका मतलब तुम किसी भी चीज़ के लिए सेटल हो जाओगे क्या? प्लीज डोंट डू दैट. इवन इफ यू गेट इनटू एन एनएमआईएमएस और एन एसआईबीएम और एन एससीएमएचआरडी और अ माइका, देयर आर बैंक्स दैट आर विलिंग टू गिव यू लोन्स, एंड इफ आर गेटिंग इनटू दीज कॉलेजेस, यार यू हैव द पोटेंशियल टू पे बैक दोस लोन्स एज वेल. इंडिया के अंदर तुमको लोन नहीं मिलेगा अगर तुम पे नहीं कर पाते हो तो, ठीक है. तो द बैंक्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, दे ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट देयर एनपीएस. वो आग बंद करके तुमको लोन्स नहीं देंगे. इवन दे नो दैट यू आर गोइंग टू पे बैक, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू गिव यू अ लोन. यू आर गोइंग टू डू एन एमबीए मोस्टली वंस in your lifetime. फीस के पीछे मत भागो, just ensure that you are getting into a good B school. That is the only expectation that we have. ठीक है. Having said or talked about colleges, that there are not a lot of great colleges that are there. So when someone asks me for recommendation that should I go through, as in should I take the colleges that I get through CET, तो मेरा आंसर बहुत ही सिंपल होता है. सिर्फ अपना existing salary या existing earning potential देखो. If you have a current earning potential of let's say 8 to 10 lakhs, I would recommend you to look at only JBIMS. अगर JBIMS हो रहा है तो जाओ, बाकी colleges में generally मत जाओ. If your earning potential is around 6 lakhs or 7 lakhs or so, मतलब डिसेंट सा जॉब है, 2-3 साल का वर्क एक्स है, लेट्स से, देन आई विल सजेस्ट कि भाई सिडनेम मिल रहा है तो ले लो, उसके नीचे मत जाओ. इफ समवन कम्स एंड टेल्स मी दैट मेरे को 2-3 लाख का पैकेज मिल रहा है या मिल सकता है, उसके आगे तो मेरे पास लेवल ही नहीं है, ना मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, ना मेरे पास शायद उतना कंटेंट है, ना मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है. तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ 2-3 lakhs per annum job, then you can go for the top 10 or top 15 colleges that are there through the CET. अगर उसके बाद मतलब जॉब ही नहीं मिल रहा है, बहुत ही फाइट है लाइफ के अंदर, योर ग्रेजुएशन कॉलेज वॉज नॉट ग्रेट, यू डोंट हैव इनफ कंटेंट ऑन योर सीवी एंड यू आर नॉट गुड इनफ टू गेट अ जॉब, एज ब्लंट एज दैट. ठीक है, आई विल बी एज ब्लंट एज आई कैन, राइट. तो उस केस के अंदर यू कैन गो फॉर द कॉलेजेस बियॉन्ड द टॉप 15. मतलब कुछ तो जॉब तुमको मिल सकता है, मिलेगा नहीं, मिल सकता है, ठीक है, बट बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं. सो जस्ट डिपेंडिंग ऑन द CET, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट CET इज ईजी, बट इट्स नॉट ईजी ओनली फॉर यू, इट इज ईजी फॉर एवरीवन. पीपल से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट तुम्हारे लिए नहीं तो सबके लिए नहीं है ना, सभी तो तुक्के मार सकते हैं. तो हाउ डज इट इंप्रूव योर चांसेस? सो दैट इज द प्रॉब्लम, नॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट कॉलेजेस. आई वुड नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द CET.
The conduct has been average to poor. This year I will say it was averagely conducted, but यार पहले even COVID times वगैरह के टाइम पे बहुत बार ऐसे हुआ है that the CET keeps on getting delayed. बहुत लेट होता है टेस्ट, बहुत लेट एडमिशन्स होते हैं, एंड देन टिल देन यार पीपल हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन टू अदर कॉलेजेस या कुछ तो वो कर चुके होते हैं. देन इट्स अ बिग हैसल दैट एग्जिस्ट्स. सो द कंडक्ट हैज़ बीन एवरेज टू पुअर. तो वो थोड़ा सा इसको बेटर करना पड़ेगा. आई होप नेक्स्ट ईयर दे डू इट इन अ बेटर मैनर, बिकॉज आई वुड रियली लाइक फॉर CET टू हैव इट्स एसेंस यार. मतलब CET इज वन टेस्ट जिसका अपना एक अलग स्पिरिट है, राइट? नो नेगेटिव मार्किंग, 200 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, आउट एंड आउट स्पीड टेस्ट, कोई GDPI प्रोसेस नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन फेवर ऑफ द CET, एंड महाराष्ट्र के अंदर CET का बहुत ज़्यादा क्रेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो इतना ज़्यादा है क्रेज है तो यार मतलब द डिलीवरी शुड ऑल्सो बी एट दैट लेवल. ठीक है, सो अगर ऐसे होता है, अगर ठीक से कंडक्ट करते हैं, इट्स अ डिसेंट टेस्ट, बट I see massive improvements that are possible when it comes to conducting the CET. एंड सबसे लास्ट यार, अनसर्टन एंड केओटिक इन जनरल. एज आई सेड, टाइमलाइंस पता नहीं क्या होने वाला है, कब करते हैं, कैसे करेंगे नहीं पता. एग्जाम में गलतियां होंगी नहीं होंगी अपने को नहीं पता. व्हाट एग्जैक्टली आर पीपल एक्सपेक्टिंग, वी हैव नो आइडिया. तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, सो यू नेवर नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा अनसर्टेनिटी है, थोड़ा केओटिक है. कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना परसेंटाइल मिलेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है. बिकॉज ऑफ विच I would want to have maybe 2 or 3 other tests in my kitty in addition to the CET. अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक्सक्लूसिव CET के लिए प्रिपेयर मत करना, एक्सक्लूसिवली CET के लिए प्रिपेयर मत करना. मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग एटलीस्ट ऑन स्नैप एंड मैट. तो देख लो, सेम DNA है एग्जाम्स का, तो एटलीस्ट ट्राई आउट दोस एग्जाम्स, MyCat एज वेल, CMAT एज वेल. ट्राई आउट दोस एग्जाम्स एंड देन टेक द बेस्ट कॉल दैट यू कैन गेट फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्स दैट यू हैव गॉन फॉर. ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. अगर कुछ भी एक्सपीरियंसेस दैट यू वांट टू शेयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई ट्राई टू रिएक्ट टू दोस experiences, and in case you want to look at the score versus percentile grid for this year's CET, there is another video that I have made for that. Do have a look at it. अगर slot wise analysis देखना है तो there are 4 analysis videos that are there, one for slot 1, one for slot 2, and one each for 3 and 4 and 5 and 6. तो ये वाले videos देख लेना. I think you'll get good clarity about what this year's CET was like. I'll see you again in the next video. Till that time, stay subscribed, and if you like this, do leave a like on this particular video.